सर मेरा सडनली Yes, sir. कुछ ओपन ही नहीं हो रहा है उस पोर्टल में सर। क्या पूरा प्रॉब्लम आ ब्लैंक रही है, है बताइए। पूरा ब्लैंक है, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है। जस्ट मैं ओपन कर रही हूँ, सडनली कुछ आ ही नहीं रहा है सर, कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा क्लिक करने का। ओके ओके, तो एक बार उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप ग्रुप पे डालिए, जो आपका ग्रुप है, और ग्रुप लेट्स सी। ग्रुप तो वो अच्छा, एडमिन ग्रुप पे आप ये कर। पोस्ट नहीं कर सकते। ओके हाँ, ओके, चलिए उसका ओपन हो रहा स्क्रीनशॉट था। तो लेके रखिए। आई थिंक कोई हाँ 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 जी, बताइए। लेके रखी हूँ। लास्ट जो क्लास है, 2 क्लास का एग्जाम देने के लिए बोला था, तो वो नहीं दे पा रही हूँ। कुछ क्लिक ही नहीं हो रहा है, मतलब कुछ यही नहीं हो रहा है, कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ओके, और किसी को ये इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है आईएमसीआरपी पे? नो सर। ओके, हो दीपक सकता डोंट है, हैव एनी प्रॉब्लम। हो सकता है हाँ हाँ, नेट इशू हो, ये हो सकता है। पर मैंने और नेट से कोशिश किया, फिर भी नहीं हो रहा है। शायद मेरा ही प्रॉब्लम है, और नहीं तो कुछ टेक्निकल इशू। एक बार नहीं, वो चेक करिएगा, ओबी का नहीं तो ओपन नहीं हो रहा है बस। बाकी हाँ, वो लॉ वाली क्लास का ओके ओपन हो गया है। ओके ओके, अच्छा। ठीक है, we'll check, no issues. All right, so is it visible to all? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Great. So I hope whatever we have done in the last class, it is clear with everyone. किसी को कोई प्रॉब्लम सबसे पहले वो बताइए। नो सर। No, No issues? Very good, very good. So today, let me check. I think somewhere someone is also joined. All right, so before moving ahead, I would like you to do some exercise. I'm giving 2 questions to you, and आपको एक क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एक एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके देखना है. Let's see if you will be able to do it or not. So the first question is 3x minus 2y is equal to 12, and 4x plus 3y is equal to 65. So this is the question. This is the first question.
I hope it is visible. Yes, sir. Yes, sir. Great. And the another question is, let's suppose 2 by 5x plus 3 by 10y is equal to 5, and x by 6 plus y by 12 is equal to 30. So these are the two questions. Question number one is this, and question number two is this. This is totally a practice. You are not going to get such questions directly in your QT exam, but these are the things which needs to be clear before starting the main topic. So that is why this is we are doing something like this. So I mean, I hope you are ready with pen and paper. So just start doing it, and keep posting your answers either into the chat box or by voice, whatever you like. So start doing it. Tiasha, since you have joined just now, there are two questions on the screen. Please start solving them. So, sir, answer is coming fraction. Yeah, it can come.
Okay, who is this? I mean, can you tell me your name? Mahesh. मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, Mahesh. sir. Okay. I think your name is different. You are logged in from your father's ID, if I'm not wrong. No, no, sir. So your name is Mahesh, right? Yes, yes, sir. Okay. So Mahesh, I think you were not there in the last class we had. 21st को जो क्लास हुई थी हमारी उसमें आप नहीं थे शायद. हाँ सर. ओके, नॉट एन इशू. एक बार बाकी सबको कर लेने देते हैं, देन हम लोग दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके डिस्कस कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. ठीक है? Okay, sir. ओके. Till now, only Mitakshi has sent one answer. Question number one. Apart from her, nobody has sent any answer. So, okay, it is taking time, but no issues. But try to save your time also. Mitakshi said x is equal to this and y is equal to this. 415470. Okay. Mitakshi has answered the second one also, and our answers are like 415 and 470. Okay. Surojit said second one 670 and 490. Okay. All right. So answers are coming different for the same question by different students. So let's see. Mitakshi, I would request you to check your second question also. Yes, sir. Recheck your second question. What about others? Deepak, Jagrati, Soma, Sushmita, Yogesh. If you are finding any problem in solving, you can directly say. Don't hesitate कि नहीं आ रहा फिर भी ठीक है नहीं बोलना. You can say कि सर नहीं हो रहा. No issues. So Yogesh has said for the first question, x is negative 94. Okay. And y is negative 147.
294. Okay, Yogesh has answered first question. Surojit has answered second question. Mitakshi has given the answers to two, first and second. So can we start discussing the questions? Yes, sir. Surojit said first question negative 94 by 17 and 147 by Yes, sir, 17. discussion. Okay, okay, good. All right, so the first question which we have, wait a second. All right, so the first question which we had is 3x minus 2y is equal to 12 and 4x plus 3y is equal to 65. Yes. So I got two answers for first question. One is negative 94 by 17 and this. So when we'll be doing it by substitution method, okay, which equation I should use? I mean, the first or second? You just tell me. कि सर फर्स्ट को यूज करिए या सेकंड को करिए और आई कैन चूज इट बाय माई सेल्फ बताइए Sir, first. first. Okay, so 3x minus 2y is equal to 12. So 3x is equal to 12 plus 2y. This 2y is transferred over there. And now x, since x is in multiplication, so x divide में चला जाएगा. So x is equal to 12 plus 2y upon 3. यही आएगा? Now we will substitute x is equal to 12 plus 2y upon 3 in equation second. So when we substitute it, what we'll get? 4 multiplied by 12 plus 2y upon 3 plus 3y is equal to 65. आप लोगों ने भी इसी तरह से किया था? Yes or no? Yes, sir. Okay, then okay, 48 plus 8y upon 3 plus 3y is equal to 65. So now wait, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ. Okay, so now we have 3 LCM ले लेते हैं. ठीक है, this is how we can solve it simply. So 3 is LCM, तो ये 3 बन जा 3, तो 1 into 48 plus 8y will come as it is, plus 1 3 divided by 1 3 into 3y will become 9y is equal to 65. Okay, Mitakshi has posted the answer for the second question, and I think now your answer is right, Mitakshi. For the second question, your answer is right, I think. Okay, let's see. Now 48
and 8y plus 9y both are positive, तो add हो जाएंगे. It will become 9 plus 8, 17y upon 3 is equal to 65. So 48 plus 17y is equal to, this 3 will go cross multiplication से 65 into 3 हो जाएगा. आई एम यूजिंग वेरी बेसिक स्टेप्स. आपको जरूरी नहीं है इन सबको करना, आप मेंटल कैलकुलेशन से सॉरी अपना टाइम और स्टेप्स को बचा सकते हैं. सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 65 कितना होगा? 195. Yes, sir. Yes or sir. no? 195. Yes, sir. So 195. So 17y will become 195 and this 48 will go over there और minus हो जाएगा. Basic maths we are using. So 17y is equal to 195 minus 48. $147. ठीक है. So 147. So y is equal to 147 divided by 17. How many of you got this answer? I think जितनों भी ने भी पोस्ट किया उसमें से सुरोजीत हैज आंसर्ड इट. y वैल्यू ठीक है, x वैल्यू चेक करते हैं. सुरोजीत की y वैल्यू ठीक थी. अदर्स में आई थिंक मिताक्षी ने कुछ मिस्टेक कर दी थी, इसलिए ओनली 147 कमिंग एज, so might be there. Yes, so everyone is clear with how we have find out the value of y. किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो प्लीज प्लीज आस्क. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क. Yes, students, no problem. Okay, Deepak has said no, sir. I want others to answer also. No, sir. No, sir. Great. All right, so now we have this y is equal to this, तो इसको you can substitute it any of the value. अगर आपको लगता है यहाँ पे substitute करने से आपको ज़्यादा complicated calculation होगी तो आप सीधे सीधे इक्वेशन नंबर 1 में चले जाइए और इक्वेशन नंबर 1 में just put this, replace this y as 147 upon 17. So 3x minus 2 into 147 upon 17 is equal to 12. So 3x minus 147 into 2 will be what? क्या होगा? $294. Yes, sir. 294 divided by 17 is equal to 12. Yes, Yogesh, you are saying something? No sir, but why? Process बहुत लंबा है. बताइए क्या कहना चाह रहे हैं बेटा इससे? Yogesh, can you answer me बेटा? y तो समझ नहीं आया. How you have got the value of y? ये समझ नहीं आया आपको बेटा? प्लीज आई मीन अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए बेटा. चैट में बहुत टाइम लग जाता है. चैट इज ओनली फॉर गिविंग योर आंसर्स टू द क्वेश्चन, दैट्स इट. आप अपनी प्रॉब्लम बेटा अनम्यूट करिए और बोलिए.
सर ये वाई वाला है ना, फिर ये तो वो तो समझ ही नहीं आया इससे कैसे निकल रहा है। कहाँ से समझ नहीं आया बताइए, मतलब किस किस स्टेप तक आपको क्लियर हो गया? ये जो समीकरण है, जो फर्स्ट समीकरण है, उसको सेकंड से बना करके निकाल सकते हो। हाँ ये हाँ हाँ बोलिए। फर्स्ट जो समीकरण है, इसको सेकंड से गुणा करके भी निकाल सकते हैं वाई की वैल्यू तो सर। हाँ अगेन सी पॉइंट इज कि हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं मनीष मेथड है, आप उससे भी कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे वो उसी से करेंगे। अगर आप उस मेथड से कंफर्टेबल है, आप उसको, हमें यहाँ ये नहीं करना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आता तो मुझे प्रॉब्लम है। अगर आपको एलिमिनेशन आता है, बात एक ही है, आप उससे कर सकते हैं। लेकिन मैंने खुद ने ही इंटेंशनली आपको इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने को बोला था, इसलिए मैंने इसको इस तरह से सॉल्व किया। ठीक है, ओके सर। आई थिंक मैंने आपका मतलब आपका जो डाउट है वो अब क्लियर है। आप कोई भी मेथड सॉल्व कर सकते हैं बेटा इसको। ठीक है सर। राइट अभी हम इसको एलिमिनेशन से भी कर लेंगे, नो इश्यूज। यस, सो क्लियरली बताइए मुझे, जिन लोगों ने इसको सब्स्टिट्यूशन से किया है, इससे सॉल्व करके एक्स की क्या वैल्यू आई आपके पास में? Yes, I want answer from you people. What is the value of x? Yes, Jagrati. सर मैं लास्ट क्लास में नहीं थी तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मिताक्षी. सर -94 और मैंने उससे नहीं किया, मैंने एलिमेंट से किया था तो मेरा -94 आया। बेटा आप मेथड कोई सा भी यूज करें, आंसर पे डिफरेंस नहीं आएगा। Yeah, but सो यू आर सेइंग -94. ओके ओके, चलिए फटाफट इससे करते हैं, फिर आई थिंक बहुत सारे लोगों को मेथड्स में प्रॉब्लम है, तो विल डू इट बाय एलिमिनेशन आल्सो, एंड लेट्स स्टिक टू एलिमिनेशन मेथड। हम लोग एलिमिनेशन मेथड को प्रेफर करते हैं, अगर सभी को उस मेथड से अच्छा लग रहा है तो। सो 3x is equal to 12, this will transfer over there and then it will become plus 294 upon 17. So 3x is equal to 17, LCM ले लीजिए, it is 1, so 12 into 17 कितना हुआ? I think 204 or not? Yes, Plus 294. So I hope everything is right. Okay, so 498. 3x is equal to 498 upon 17, right? So it will become, now this 3 will go over there, so it will become 498 divided by 17 into 3. This is the value for x. 3 के टेबल से ये कट हो सकता है क्या? Yes. So we can actually simplify it by 3. So 3 1 ja 3, 19, 3 6 ja 18, and 3 6 ja 18. So x is equal to 166 upon 17. Beta, this is the answer for x. Sir, this is the absolute correct answer for 2. Surojit has said 670. Yes, yes, it is right. Okay, so now since योगेश ने भी अभी कहा कि सर एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, so let's do this quickly by using elimination method. No issues, कोई दिक्कत नहीं है. We want everyone to be clear from their doubts. So 4x plus 3y is equal to 65. यही था क्वेश्चन. Now yes, Yogesh, आप and Mitakshi, you two will be with me, और आप बताते रहिए क्या क्या करें, बताइए एलिमिनेशन के लिए क्या करें. सर 3x की जो वो है इक्वेशन, उससे 4 से इंटू कर देते हैं एंड 4x के लिए उसको 3 से इंटू कर देते हैं, लाइक 4x की जो है, यानी इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं?
यस सर। ओके, एंड इक्वेशन नंबर 2 को 3 से, 3 से, यस सर। दैट मीन्स आप x के कोएफिशिएंट को सेम करना चाहते हैं, है ना? यस सर। ओके, सो 12x minus 8y is equal to 48, 40, एंड देन 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12x plus 9y is equal to 195. यस सर। Okay, now y what we'll do? equals to, so like वो तो x तो हो गया और y आ गया प्लस का, और y is equals to 147. बेटा दिस इज व्हाट यू हैव डन। बेटा 12 और 12 दोनों सेम साइन के हैं, तो इनको कैंसिल करने के लिए आपको इस इक्वेशन में से इसको माइनस करना पड़ेगा, है ना? तो जब हम इसको माइनस करेंगे बेटा तो इट विल बिकम माइनस माइनस एंड माइनस। यही मिस्टेक हो रही होगी शायद आपसे। यस सर। राइट, वापस समझिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू गाइस इज दैट कि 12x और 12x बोथ आर ऑफ सेम सिंबल, तो इनको कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से दिस इक्वेशन विल बी सेपरेट। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, सो व्हाट आई विल डू, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। योगेश समझ आ रही है मेरी बात? सर मैं ऐसे बोल रहा हूँ सर, ये जो 3x है ना सर, अपन पहले समीकरण को 3 से गुणा करेंगे, ठीक है सर, और जो सेकंड समीकरण है उसको भी 2y से गुणा करेंगे, तो सेम आएगा सर आंसर, उसको 2 से 94 147। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्टली सेम आएगा योगेश, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 1% भी डाउट नहीं है आपकी बात में। बट यहाँ पे आपकी चॉइस है, जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, y के कोएफिशिएंट को सेम कर लिया योगेश, है ना, और y एलिमिनेट हो गया, राइट। और यहाँ पे जो मिताक्षी ने और मैंने किया, हम लोग यहाँ पे x के कोएफिशिएंट को सेम कर रहे हैं। आप किसी भी तरह से करें आंसर सेम आएगा बेटा, क्लियर? यस सर। ठीक है, आपके वाले केस में पहले x की वैल्यू आई होगी, फिर आपने y निकाला होगा। हमारे इस वाले केस में हम पहले y निकालेंगे और फिर x आएगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस, बट आंसर विल नॉट एट ऑल चेंज, आंसर विल बी सेम, चाहे आप वाले तरह से करें या हमारे वाले तरह से करें, ठीक है? राइट, सो आई एम मूविंग अहेड, 12x minus 8y minus 12x plus 9y, LHS minus LHS, left hand side minus left hand side, is equal to RHS 48 minus RHS 195। इसको आप ओपन करेंगे 12x minus 8y, एंड यहाँ माइनस साइन बाहर है, और हमने स्कूल टाइम में पढ़ा है व्हेन माइनस नेगेटिव साइन इज देयर तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो 12x इज पॉजिटिव, इट विल बिकम नेगेटिव 12x, एंड दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट विल बिकम नेगेटिव 9y इज इक्वल टू 195 माइनस 48 कितना आएगा, 147। यस सर। यस सर। नेगेटिव 147 ना, ठीक है। सो नाउ आप देखिए, मीनाक्षी आप ध्यान दीजिए, 12x एंड 12x अब कैंसिल आउट हुआ बिकॉज वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव। आप इस पूरे प्रोसेस को, ये मैंने लिखा है, इसको आप बिल्कुल इग्नोर करके आप यहीं पे, अगर दो सेम साइन के हैं, ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाले को माइनस देंगे, तो जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन चेंज कर दीजिए। ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। आप इसको कैंसिल करेंगे, नेगेटिव 9y और नेगेटिव 8y मिलके कोई चीज यहाँ आ रही है, देखिए नेगेटिव 8y नेगेटिव 9y, नेगेटिव 17 is equal to negative 147, so y is equal to negative 147 divided by negative 17, negative negative cancel out, and you will get y is equal to 147 upon 17. Is it clear? Yes sir. No problem at all. Mitakshi, are you clear with the doubt जो भी आपका था? एक्चुअली सर मैंने जल्दी के चक्कर में ना वो गलती से मिस्टेक कर दी थी, सेकंड वाले में नहीं हुआ।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो इश्यूज, नो इशू, नो नीड टू हरी, जस्ट टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस शुड बी क्लियर. सोमा, यस सर. मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बताइए, समझ आया ये क्वेश्चन? हमने दोनों मेथड से कर लिया इसको. जी, थोड़ा सा समझ में आया, कोशिश कर रही हूँ. बिल्कुल, प्लीज ट्राई, प्लीज कीप ऑन ट्राई, एंड कोई दिक्कत आए तो बताइए. यस सुष्मिता. समझ में आ गया. गुड. सुरोजीत. यस सर, समझ में आ गया. ओके, ओके, ग्रेट. जागृति इज ऑलरेडी डन. दीपक, दीपक एनी प्रॉब्लम बेटा? नो सर, आई एम सॉलिड 147 अपॉन ये जो मैंने सॉल्व कर दिया था उसको बताते ही. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. टियाशा. यस सर, आ गया सर समझ में. डन. यस सर. ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट. योगेश. Yes sir, it clears. Very good, very good. So do we need to discuss second question? Second question क्या किसी ने? Yes sir, second question. This one discuss करें? Okay, second question का आंसर सुरोजीत ने दिया है, और Mitakshi has also given it, and I think she is right. Okay. All right. So let's quickly discuss second question ताकि आज ये अपना elimination and substitution method completely we can do it. So, all right. So the question which we have, wait a second. I need question first. All right, so let's do it quickly. Okay, so we have first equation is 2 by 5x plus 3 by 10y is equal to 5, and the next equation which we have is x by 6 plus y by 12 is equal to 30. Am I right? यही question था? Yes sir. Okay, so in such type of question आप चाहे directly आप coefficient multiply करके भी कर सकते हैं, but I would recommend कि आप इनको पहले simplify कर लें. जैसे ही मैं इस first equation को लेता हूँ, I'll take this first equation and I'll take LCM in left hand side. तो left hand side का LCM कोई मुझे बताएगा कितना आएगा? 5 और 10 का LCM? Sir 5. 10 है सर, 10 है सर. 10. So the LCM of 5 and 10 is 10. Okay, now 5 2 are 10 and 2 multiplied by 2, it will become 4x plus 10 divided by 10, 1 into 3y, it will become 3y, and ये as it is 5. Now आप इस 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपकी सिंप्लीफाइड इक्वेशन बनी 4x plus 3y is equal to 50. इसको आप अपनी इक्वेशन, मेन इक्वेशन मानिए. इसी तरह से आप इस सेकंड को ले लीजिए. सो व्हेन वी टेक इट, क्या एलसीएम आएगा इसका? 12. 6 and 12, LCM of 6 and 12, 12. Okay, so 12 divided by 6, 2, 2 into x, 2x, plus 12 divided by 12, 1 into y is 1, is equal to 30. Now this 12 will go over there और multiply हो जाएगा, तो 2x plus y is equal to
360. 12 into 30 will become 360. This is your second equation. So now अब तो बस basic equation हमने बना ली है, simplified equation बना ली है. 4x plus 3y is equal to 50 and 2x plus y is equal to 360. Any problem in this? No, sir. Now just need to solve it. तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है उससे आप सॉल्व करिए. एंड एज पर माय रिकॉर्ड x will be 515 and y should be negative 670. Yes, sir. Is it right? Yes, sir. Okay, great. So I want all of you to solve it. We have more than 15 minutes right now. So just solve it and let's close this topic over here only. कोई भी डाउट है आप पूछें, नहीं समझ आया और पूछें, but I want you to be clear with these methods because ये हमारे काम आने वाले हैं, ताकि when we'll be doing the main topic of stats, especially the regression equations, वहां पे आपको इन सब चीजों को लेकर कोई डाउट ना हो. So I think 9 people are there. So यही है, x is 515, y is negative 670. Yes, sir, yes, sir. Great, very good. Others? Sushmita, Yogesh, Yes, I sir. want you to find the answer and check. Jagrati, is this the answer? Okay, Yes, sir. good. Mitakshi, I think you have answered it already. Yes, sir. Okay, Soma, beta, no issues. You can ask if you are not getting it still. You can ask again and again, but try to be clear. Slow चल रहे हैं, कोई बात नहीं. Slow है, कोई बात नहीं. Speed is not required right now, but the clarity is more important. नहीं सर, मैं देखिए अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ. अगर कुछ डाउट हुआ मैं जरूर नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी, क्योंकि ये मुझे समझना पड़ेगा, क्योंकि मेरा स्ट्रीम तो पूरा आर्ट्स है ना, तो वो चीज समझने पड़ेगा. उसके बाद मैं आपको डेफिनेटली डाउट होगा तो मैं आपको पूछ लूंगी. सोमा, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू वन थिंग. आज आपने बोला है ये आर्ट्स है, आगे मत बोलिएगा, बिकॉज मेरे लिए आप सब सेम है. एक मिनट, आई एम नॉट स्कोल्डिंग यू बेटा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू कॉन्फिडेंस, प्लीज. राइट, आप अगर इस चीज को माइंड में बिठा लेंगे ना, दैट आई एम फ्रॉम आर्ट्स, मेरे लिए टफ है, बेटा कभी नहीं समझ पाओगे. सो यू जस्ट से कि यस, मेरे सामने एक नई चीज आई है, मुझे नई चीज सीखनी है. सिंपल है ना. क्योंकि आप देखिए यहाँ पे भी हैव आपके जो क्लासमेट्स हैं उनमें बीटेक से भी हैं, तो बीटेक स्टूडेंट्स के लिए ये तो बहुत छोटी चीज है. तो मैं ये अज्यूम कर लूं कि बीटेक के बच्चे हैं और इनको तो आता होगा और मैं फास्ट इसको पढ़ा दूं. इज इट लाइक आई एम गोइंग वेरी स्लो? बिकॉज मेरे लिए आप सब एक स्केल पे है ना. राइट. सो whosoever student is into this from BTech background, he might be feeling bored कि सर ये क्या पढ़ा, but he is understanding कि हाँ उनके पास एक एडवांटेज है, but it is not like कि मैं सिर्फ उस एडवांटेज के बेसिस पे बाकी स्टूडेंट्स को भी ये समझ लूं कि इनको भी आता होगा. नहीं, my objective is कि जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग क्लास में हो, everyone should be clear. पहले पढ़ा है, very good. नहीं पढ़ा है, that is also okay. No issues in that. So ये चीज माइंड से आप बेटा बिल्कुल निकाल दो कि सर मैं आर्ट से हूं, मुझे टाइम लगेगा, नहीं लगेगा. बस थोड़े से एफर्ट्स आपको ज्यादा करने पड़ेंगे. जी. उसके अलावा और कुछ. राइट. तो इसको अपनी वीकनेस मत बनाओ बेटा कि आर्ट से नहीं, कुछ नहीं है. ठीक है. जी सर, थैंक यू. Right. So just be confident and you can ask as many time as you want. No issues in that. But I want कि क्लास में जो हुआ है वो क्लास में ही क्लियर हो जाए. वो अगली क्लास तक के लिए नहीं जाना चाहिए कि ठीक है अभी समझ नहीं आया, अगली क्लास में पूछ लेंगे. नहीं, अगली क्लास क्यों, अभी टाइम है, अभी पूछिए. Getting my point? Like I had the plan that इस क्लास में मैं आपसे एक बार वो ग्राफ वगैरह भी शेयर करके और हम लोग हमारे मेन टॉपिक पे चले जाएंगे, बट वो नहीं हुआ. Not an issue. We'll do it in next class. So this is the kind of thing I request all of you to maintain. है ना?
जी 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 सर। Yes, sir. Right. So, Surojit, you were having some doubts, not